यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आप कतार में हैं। Hello everyone. I was returning from my office, and do you know what I saw? I saw so many people gathering at one places. Buses and scooters were honking at each other. So many people were alighting off from the metro, and they were not happy at all. People were carrying bags on their back and was feeling absolutely shitty. So what came into my mind? I thought like. Do we really need 1.5 billion people in our country? As per the UN report, our population is going to be by 2050 2 billion people. Okay, and if we talk about our facilities, as compared to the Western countries, we are nowadays आप देख रहे हैं कि हमारी country जो है they are competing in defense, in technology, in AIs, in startups with the Western countries like European countries and American countries. But are we really beating them? We are not beating them at all. If we talk about facilities of household, absolutely poor. If we talk about the facility of transportation, absolutely poor. If we talk about the facilities of medical, absolutely poor. If you go to any publicly set up hospitals like AIIMS, Safdarganj, you will see the real havoc that people have to face, the real despair that you will be able to see on their faces. If you see the human development index, that is we are absolutely low. If you see the human happiness index, so अगर सिर्फ जीडीपी रेट 6.2% से बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बढ़ रहे हैं. अगर जीडीपी पर कैपिटल इनकम देखा जाए, मतलब एक इंसान की जो आय है हमारी कंट्री के अंदर, वो टोटली वेरी करती है. कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं. यू सी पीपल लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स लाइक स्ट्रीट डॉग्स. सो दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक टू सी, एंड we as a young generation have to do something on that. We are educated people. We are going to run this country after decades or so. So it is very important that we learn these kind of things, that overpopulation does not only create havoc, but it also creates scarcity of resources. We have scarce resources and we have big population. So it is very important. Our Western countries, particularly Americans and Europeans, they understand these kind of things. They the birth rate of in those countries are very low. We are not saying that our population is vast. It means we have more opportunity, but if you see the skills that our people possesses, it's absolutely low. It's absolutely meager and really to the point of nil. So we have to understand these kind of things. Population help करती है चीज़ों में, पर इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं. जैसे कि अगर आपके पास, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि इससे हमें क्या नुकसान होता है. तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं. हमारी जो पॉपुलेशन की वजह से हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं. तो अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पता है आपको कि इंडिया के हाफ ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में जो है एम्प्लॉयड है. लेकिन अगर लोग ऐसे बढ़ते रहे विथ मोर माउथ्स टू फीड, प्रेशर ऑन फार्म लैंड इज राइजिंग, है ना, ओवर यूज ऑफ सॉइल आप बार बार करोगे तो जो कल्टिवेटेड लैंड होंगे वो कम हो जाएंगे, तो आप अपने लार्ज पॉपुलेशन को जो है खिला नहीं सकते हो. एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री की बात करें तो एवरी ईयर्स मिलियंस ऑफ पीपल एंटर द जॉब मार्केट. लेकिन industries and business cannot create that much of job. We have MNCs, we have so many companies, but those companies are the companies of the foreign countries, the majority of the companies. So this leads to unemployment, underemployment, or the rise of informal sector. बात आप एजुकेशन की कर लो तो large student population होगा तो our schools and colleges will face overcrowding, and because of that the quality of education that our children is going to get is in higher tech student ratios and limited infrastructure. So these affect skill development, along with that it slows our economic growth. बात कर लीजिए आप हेल्थ केयर की, तो ओवर पॉपुलेशन क्रिएट्स इमेंस प्रेशर ऑन हॉस्पिटल. आपके पास बेड की कमी होगी, आपके पास मेडिकल स्टाफ की कमी होगी, आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट की कमी होगी, आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे. तो बेसिकली व्हाट दिस विल क्रिएट डिवास्टेशन काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस. अगर आप बात करें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की, तो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है टोटली डिपेंडेंट होती है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कितना है. आपके पास वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो है एक लिमिटेड मात्रा में होती है. अगर आप ओवर पॉपुलेशन जो है इस चीज़ों को एसिलेट करता है, डिप्लीशन को. आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत जल्दी से यूज़ करेंगे. क्लाइमेटिक स्ट्रेस होगा, नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे एनर्जी को, टेक्सटाइल को एंड टूरिज्म को. तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो, और ओवर पॉपुलेशन इज़ नॉट जस्ट डेमोग्राफिक इशू, इट्स एन इकोनॉमिक चैलेंज. इससे आपके हेल्थ केयर को, आपके एग्रीकल्चर को, आपके एजुकेशन सिस्टम, हाउसिंग, एनवायरमेंट, दिस ऑल थिंग्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू इट. सो we as a young generation have to think about it. I will explain a bit about it in the next slides, but you have to think about it. You have to work on your mind as to
is this really a very a burning issues that our country is facing? Is this really a kind of situations that our Western economies, our European Britishers, they had understood this a long time ago? That's why with minimal population, they are ruling the world. They are ruling the Asia, the other continents, Africans. They all are working under those countries. So it is very important. You have to think about it. You have to do your R&D on this, and you have to spread this message that overpopulation is not going to increase our economy, our lifestyle, but an individual with higher intellect, with who inculcates skills, the development they have in education. These are the kind of things that an economy requires, and that is only the thing that is going to take our country upwards and increase our human development index. So we will describe more about this in our next slide. Let's see that. हेलो एवरीवन। तो अब हम थ्रू डेटा के थ्रू बात करते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन की क्राइसिस क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं द स्केल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन चैलेंजेस। तो अगर आप देखते हैं तो हमारी जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, वो 1.2% हो रहा है। 1.5 बिलियन पीपल बाय 2030 तक हो जाएंगे। 2 बिलियन जो है वो 2050 तक। जबकि बहुत सारी कंट्रीज जो है, नेशंस जो है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रही है, मतलब अपने पॉपुलेशन को कम कर रही है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि बहुत सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, जैसे गवर्नेंस को, इंडियन सोसाइटीज़ को। इन सारी जब सेक्टर्स को ये अफेक्ट करेंगी तो हमें कोऑर्डिनेटेड और एक इमीडिएट रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की बात करते हैं कि हमारे पास इतना वर्कफोर्स तो है, लेकिन कितनों के पास काम नहीं है। तो अगर डेटा देखा जाए तो 8% ऑफ ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारे देश में जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें से जितने लोग हैं उसमें से 8% जो है वो ओवर अनएम्प्लॉयड है। दिस इज अ रिपोर्ट दैट हैज बीन जनरेटेड बाय CMI इन 2024। अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो है 10%, मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जॉबलेस इन सिटीज वेयर माइग्रेशन इज इंक्रीजिंग, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा एंड दोज अर्बन काइंड ऑफ सिटीज। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 28%, मोर देन 1 in 4 यंग इंडियंस कैन नॉट फाइंड वर्क डिस्पाइट एजुकेशन। तो इंडिया के अंदर 4 में से 1 जो बंदा है वो जो है उसके पास काम नहीं है, या ही इज नॉट एबल टू गेट द जॉब। अब डेमोग्राफिक पैराडॉक्स की बात कर ले तो ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो 2011 का डेटा कि 61% ऑफ द पॉपुलेशन वाज वर्किंग, लेकिन 2021 में ये 64%। तो ये अच्छी बात है कि 61% से ज़्यादा बढ़ के 64% जो है इस देश में जो लोग हैं काम कर रहे हैं। लेकिन इसका एक मूलभूत डिमेरिट ये हुआ है कि जो यंग पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 37% हो चुका है इन 2022। इसका मतलब क्या हुआ कि यंग वर्कफोर्स जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहा। जैसे कि मान चलिए एज एन एग्जाम्पल की गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो ओल्ड लोग हैं वो तो अभी भी हैं, लेकिन वो सीट खाली नहीं कर रहे हैं, या फिर न्यू जॉब जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से जो न्यू वर्कफोर्स है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए। अब ओवर पॉपुलेशन का एनवायरमेंट पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले एयर क्वालिटी क्राइसिस की बात की जाए। इस दुनिया में 30 में से सबसे ज़्यादा 30 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 22 जो है वो इंडिया के अंदर ही है। ठीक है, अगर आप दिल्ली को कहा जाए तो दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। वाटर स्केर्सिटी की बात की जाए तो 21 मेजर सिटीज विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर बाय 2030। 21 जो मेजर सिटीज है वहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा 2030 तक। फॉरेस्ट का डिप्लीशन हो रहा है। आप देखें कि आप मेट्रो बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जनरेट करने के लिए रोज जो है डिफोरेस्टेशन होता है, मतलब पेड़ों की कटाई होती है। तो फॉरेस्ट कवर रिड्यूस बाय 1.73 मिलियन हेक्टर्स बिटवीन 2001 to 2021। सो दिस इज अ हिडन कॉस्ट दैट आवर एनवायरमेंट इज पेइंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन का हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखा जाए कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या है, आपके पास अच्छे पार्क नहीं होंगे, तो क्या होगा कि अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी हो जाएगा। सेडेंटरी का मतलब लोग जो है घर पे बैठ के दे विल मंच ऑन फूड, दे विल नॉट लाइक टू गो आउटसाइड, दे विल बी बिंजिंग एंड वॉचिंग जस्ट टेलीविजन शोज। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो है उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ओके, हायर शुगर इंटेक लोग करेंगे ड्यू टू स्ट्रेस। आप जब भी देखते हो कि जब भी आप स्ट्रेस आउट होते हो तो आप कॉफी, टी ये सब डिमांड करते हो। क्यों? क्योंकि शुगर जो है आपके डोपामिन को बूस्ट करता है, गुड फीलिंग हार्मोन जनरेट करता है। तो these are the kind of things you will have to chronic stress होगा from urban living से। consequences इसके क्या होंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ेंगे, द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ ट्रीटिंग, जैसे जैसे लोग बीमार होंगे तो उस पर्टिकुलर सिटी में या उस पर्टिकुलर कंट्री में जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दीज आर द हेल्थ बर्डन दैट ओवर पॉपुलेशन कैन क्रिएट। अब बात करते हैं कि हम इस अर्बन प्लानिंग चैलेंजेस, मतलब इसमें इस चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या इसमें क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो करंट रियलिटी देखें तो हम अनप्लान्ड स्पॉन्टेनियस एंड अर्बनाइजेशन क्रिएट स्प्रॉलिंग स्लम। तो आप देखते हैं कि जैसे कि कहीं भी आप एज एन एग्जांपल आप दिल्ली में ही देखिए, तो कहीं भी कोई चीज़ का निर्माण होता है, जैसे हॉस्पिटल बनता है, तो उसके बगल में जो है वो स्लम्स बनने चालू हो जाते हैं, और वो स्लम फिर जो है वो फिर बहुत सालों तक रहता है। तो ये एक करंट रियलिटी बनती है। नीड ट्रांजिशन, हमें अर्बन प्लानिंग करना है कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से, जैसे अगर दिल्ली के अंदर एज एन एग्जांपल पर डेंसिटी में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए, मतलब एक 1 किलोमीटर के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अगर 2000 के आसपास है तो हमें दूसरी सिटी बनानी चाहिए। तो हमें ट्रांजिशन की जरूरत है, फ्यूचर विजन की जरूरत है कि अगर जिस हिसाब से हमारी कंट्री में जो है लोग बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से रिसोर्सेज एफिशिएंट सिटीज़ को बनाना चाहिए, ग्रीन स्पेस को क्रिएट करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना है, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी खर्चा करना है। तो दिस इज द प्लानिंग दैट आवर गवर्नमेंट शुड डू। अब बात करते हैं हम पॉलिसी रिकमेंडेशन की, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं, फैमिली प्लानिंग पे हम ज़्यादा जोर दे सकते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना करें आप। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं,
वो जो है स्किलफुली डेवलप्ड हो, ठीक है। एनवायरमेंटल रेगुलेशन पे हम जो है रोक लगा सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है उसको कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हमें सेकेंडरी सिटीज़, कुछ सिटीज़ है जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एंड गुजरात, ये जो है बहुत ही डेवलप्ड सिटीज़ माना जाए, मतलब यहाँ पे लोग आते हैं काम करने के लिए। इसके अलावा हमें सेकेंडरी सिटीज़ को भी जो है जनरेट करने की जरूरत है। इंसेंटिवाइज बिजनेस टू क्रिएट जॉब्स इन रूरल एरियाज, इन्वेस्ट इन फीमेल एजुकेशन विच कॉरिलेट्स विद रेड्यूस फर्टिलिटी रेट, और हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लानिंग बनानी चाहिए ताकि हम पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर सके कि किसी भी सिटी के अंदर कितने जो है पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और उस हिसाब से हम डिपार्टमेंट्स और सर्विसेज जो है हम उन्हें दे सकते हैं। तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। अब हम कुछ केस स्टडीज की बात कर लेते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर ही कुछ स्टेट ने जो है इस पॉपुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। जैसे केरला मॉडल की बात की जाए तो केरला ने अचीव किया फर्टिलिटी रेट 1.8 थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फीमेल एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप एज एन एग्जांपल देखें तो केरला इज द वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट इन आवर कंट्री, है ना। एर्नाकुलम एक जगह है केरला में जो जिसकी लिटरेसी रेट सबसे हाई है इंडिया के अंदर। तमिलनाडु में भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम चला जिसमें उनका फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 3.5 इन 1980 टू 1.7 जो है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि मतलब पर पर्सन जो है कितने बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। तो 1.7 का मतलब ये नहीं होता कि एक बच्चा हुआ और दूसरे का सिर्फ हाथ पाँव हुआ, 1.7 एक एन एवरेज निकाला जाता है। अहमदाबाद की भी अर्बन प्लानिंग की बात की जाए तो इंप्लीमेंट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम। सो अहमदाबाद वहाँ पे भी मतलब उससे क्या हुआ, रेड्यूस कंजेशन हुआ है, इंप्रूव एयर क्वालिटी हुआ है, इनहेंस। तो इन स्टेट्स ने कुछ काम किया है जिसकी वजह से जो है इन्होंने ये रिजल्ट पाया है। तो अब हम बात करते हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है, लेकिन हम इसको सस्टेन कैसे करेंगे, हम कैसे इसको मिला जुला के चल सकते हैं। तो हमें अर्जेंसी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पॉपुलेशन इशूज मस्ट बी सेंटर टू ऑल डेवलपमेंट प्लानिंग। हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम ब्रिजेस बना रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से हमारी जो वर्किंग होनी चाहिए वो उस हिसाब से होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जितने बच्चे पैदा हुए उस हिसाब से उनको एजुकेशन देना है, उस हिसाब से उनको वो एनवायरमेंट देना है रहने के लिए, उस हिसाब से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। एम्पावर कम्युनिटीज, हमें लोकल स्टेक होल्डर इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन टू एंश्योर कल्चरल रेलेवेंस, मॉनिटर एंड अडेप्ट। हमें डेटा ड्रिवन सिस्टम बनाना है। अगर आप चाइना में देखो या अमेरिका में देखो, वहाँ पे हर एक इंसान का जो है डेटा होता है गवर्नमेंट के पास कि कितने एज ग्रुप के हमारे पास बच्चे हैं, कितने एज ग्रुप के हमारे पास यंग अडल्ट हैं, कितने एज ग्रुप के पास हमारे पास ओल्ड पीपल है। तो उस हिसाब से जो है वो अपने कंट्री को मैनेज करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी ये सिस्टम पुअर है। हालांकि हमारे पास अभी आधार सिस्टम है, पर आवर सिस्टम हैज नॉट बीन जनरेटेड सो मच। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर ओवर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।